Good morning, sir. Good morning, Yasin. Morning, sir. Good morning, Ajit. Good morning, sir. Good morning, Asmi. Good morning, sir. Yeah, Vivek Bare. Good morning. Dear yes, sir. students, I have sent the question answers of two chapters, chapter second and third, and it has been reported by some of the students that some of the questions are repeated in chapter second and third notes. Okay, so आप दोनों क्वेश्चन में से दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के ही आंसर दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के आंसर्स याद करो, ठीक है, और जो क्वेश्चन आएगा उसमें से वो आंसर लिखना है, जो लिखना है वो लिख दो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों चैप्टर Good morning, sir. Good morning, sir. किसने बोला गुड मॉर्निंग? बेटा सोनू, I am in middle of my conversation, okay? So as soon as you join the class, please don't start these type of silly things. ठीक है? चलिए. I would be able to record your attendance without your good morning also. So जब conversation चल रहा है, at that time please don't disturb. Okay, well, so Excuse me, sir. yes, Mani. Sir, can you tell again what have you told? Yes. Because I have joined now. Now listen. I gave the question and answers of chapter second through WhatsApp in history. Okay, and question and answers of chapter third and fourth I gave through Teachment App. By mistake, it happens that some of the questions are same in history chapter second and in history chapter third. Okay, so that is being reported. So what I am telling you, you can, okay, you can join it with both the way, है ना? आप दोनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के उस क्वेश्चन के आंसर को लर्न करो और लिख सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. बाद में करना. ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Now, Yes, sir. so I am going to present the screen. And dear students, this was the last line or the topic that we did yesterday. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था जो हमने कल कंप्लीट किया था. ठीक है, and this is what the right mix of minerals and organic matter make the soil fertile, है ना? सॉइल किसके कारण फर्टाइल होती है? राइट मिक्स ऑफ the soil could be fertile by the right mix of what? Minerals. Minerals and organic. तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का राइट मिक्स यानी सही मिश्रण होगा तो ही सॉइल कैसी होगी? प्रॉपर फर्टाइल. Now, the next section is related to landslide. अगला जो है वो किससे रिलेटेड है? लैंडस्लाइड. Now, क्या है लैंडस्लाइड? So, landslides are simply defined
as the mass movement of rock, debris और earth down a slope. अभी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. What is लैंडस्लाइड? ठीक है, तो आपको यदि 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज लैंडस्लाइड, तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप. ठीक, देन ओके. जब मैं पूछूं तभी बोलना करो. Now, then next is a mitigation mechanism. ठीक, now mitigation mechanism का यहाँ सेंस क्या है कि यदि लैंडस्लाइड तो होती है, परंतु क्या लैंडस्लाइड होने दें, जैसा है वैसा चलने दें? नो. सो मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी घटना को होने से रोकने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं. यानी कुल मिलाकर मिटिगेशन मैकेनिज्म मतलब उस घटना से बचने का क्या उपाय किया जा सकता है ताकि वो घटना हो ही नहीं, और यदि हो तो उससे कम नुकसान हो. ठीक, तो नुकसान कम करने के या घटना हो ही नहीं, घटना होगी ही नहीं, ये करने के लिए जो तरीके, जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा दैट इज मिटिगेशन मैकेनिज्म. गौरी चौहान, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. गुड. यू आर गौरी चौहान? Yes, sir. चलो. So what are the mitigation mechanisms? So some broad mitigation techniques of landslide. तो mitigation techniques of landslide मतलब लैंडस्लाइड की घटना को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड की घटना से बचने के लिए क्या मिटिगेशन मैकेनिज्म अपनाया जा सकता है. So what is that? Okay, hazard mapping to locate areas prone to landslide. Hence, such areas can be avoided for building settlement. Now, hazard mapping to locate areas prone to landslide. इसका मतलब क्या है? Prone to landslide मतलब जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है, तो उस खतरे की क्या करनी है? मैपिंग. मैपिंग का मतलब सर्वे करके ये पहचानना है कि किन इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकती है. ठीक है, और सच एरिया कैन बी एंड मस्ट बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट. तो जिन इलाकों में लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी है वहां पर सेटलमेंट मतलब इंसानों को बसने नहीं दिया जाना चाहिए. वहां घर बनाओ ही मत भैया, मालूम है कि लैंडस्लाइड का खतरा है. ठीक. देन सेकंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. रिटेंशन वॉल मतलब मान लो हमें मालूम है कि पहाड़ की ढलान है और यहाँ पर यदि लैंडस्लाइड होगी तो वो पूरा पत्थर, डेब्रिस, मलबा कहाँ आ जाएगा? सड़क पर आ जाएगा. तो सड़क के किनारे पर क्या बना दी? रिटेंशन वॉल. ये दीवार खड़ी है. Yes, sir. अब यदि लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है तो जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, मलबा है वो क्या सीधे सड़क पर आ जाएगा या दीवार के पीछे रुक जाएगा? दीवार के पीछे रुक जाएगा. दीवार के पीछे रुक जाएगा. This is the way. This is the way to control over the landslide, है ना? लैंडस्लाइड से का
रिटेंशन वॉल है। बेटा जब आप लोगों को नहीं बोलना हो तो ये शरारत ना किया करो, ठीक है? अदरवाइज मैं सीधे उस स्टूडेंट को टीचमेंट क्लास से ही गायब कर दूंगा। Then increase in the vegetation cover to arrest landslide. Now increase in the vegetation cover to arrest landslide का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि लैंडस्लाइड होगी कहाँ? तो लैंडस्लाइड सिर्फ वही होगी जहां एक लैंड में लेवल में डिफरेंस है कि हाइट वाला लैंड है और लो हाइट वाला। तो अपर हाइट वाले लैंड से लैंडस्लाइड कहाँ होगी? नीचे की तरफ। यानी सीधा है कि लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिममली कहाँ होती है? माउंटेनियस रीजन। लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटीज कहाँ पर है? माउंटेन रीजन। तो अब क्या करेंगे? लैंडस्लाइड रोकने के लिए वेजिटेशन कवर मतलब पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा क्या लगने चाहिए? पेड़ लगना चाहिए। पेड़ लगे होने का फायदा क्या है? ये चीज आर्यन यंगलवार बताएगा। आर्यन ये बताओ कि पहाड़ों पर यदि वेजिटेशन कवर होगा, पेड़ लगे हुए रहेंगे, तो लैंडस्लाइड किस तरीके से रुक सकती है? चलिए, एहसिन मोबाइल प्लीज टेल द आंसर बेटा। यस सर। आंसर बोलो। क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा हूं, यदि पहाड़ों पर है ना, माउंटेन्स में पेड़ होंगे, वेजिटेशन कवर होगा, तो लैंडस्लाइड रोकने में इससे क्या मदद मिलेगी? Sir, the trees will work as the wall and landslide will stop there. बेटा is there someone there in your room? Sir, अनुष्का रॉय। हाँ, एहसीन, नाउ आंसर। sir, the trees will work as the wall and the landslide will stop. Okay, the trees will work as a wall and it stops the landslide. ठीक है? Now you are around 70% correct. दिगेश बारहटे, Sir. tell the answer. Yeah. Sir, the tree will stop the landslide because their root will hold the land. That will help them. That will not means there will be not landslide because the plant's root will be tight in the land. Good. ठीक है? So वेजिटेशन कवर लैंडस्लाइड को अरेस्ट मतलब रोकेगा कैसे, है ना? बेसिकली पेड़ जब संख्या में ज्यादा होंगे तो मिट्टी की पकड़ क्या नहीं होगी? कमजोर नहीं होगी। समझ में आ रहा है? और बारिश का पानी क्या नहीं कर पाएगा? मिट्टी को बहा नहीं पाएगा। जब मिट्टी नहीं बहेगी तो जितने भी ग्रेवल्स हैं, स्टोन पीसेस हैं, वो क्या नहीं होंगे? ढीले नहीं पड़ेंगे, लूज नहीं होंगे। और जब लूज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगी? लैंडस्लाइड नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। अब इसमें करते क्या है? ठीक है, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क का मतलब क्या है? ठीक, so I'll try to explain you here. Okay, if not possible then we'll work out with the videos. Just a minute. Now you can imagine कि this is a road, है ना? ये क्या है? रोड है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन में है,
और इसके इस तरफ पहाड़ है, ठीक है, और इधर ये ढाला। अब क्या है, बारिश का पानी अलग अलग जगह से फ्लो होकर के रोड पर आया और ये कहाँ हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। अब जब ये एक जगह इकट्ठा होकर के फ्लो होगा तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अस्मी ज्यादा होगी। Yes, जब sir. पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह से फ्लो होगा, तो वो क्या करेगा, इस रोड को इरोड कर देगा, ये रास्ता खराब कर देगा, Yes, है sir. ना। एक ही जगह से जब पानी जब जाएगा तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर। जब क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसा होगा, जब क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसा होगा, ज्यादा ज्यादा जब क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो लैंडस्लाइड करेगा, रोड खराब करेगा और पहाड़ को कमजोर करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क करते हैं। अब सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क में कैसे काम होगा, ठीक है, वो लोग पानी को एक जगह इकट्ठा ही नहीं होने देते, पानी को एक जगह इकट्ठा होने ही नहीं देंगे, है ना। यहां से पानी आया, इतनी धार है, इसको अलग निकाल दिया, इतनी धार है, इसको अलग निकाल दिया, और क्या किया, इस सड़क के किनारे किनारे गड्ढा खोद के एक नाली जैसी बना दी, ठीक है, क्या बना दी, नाली नाली। अब नाली बना दी, ये पूरा का पूरा पानी सड़क पर आकर के नहीं बहेगा, बल्कि कहाँ आएगा, यहाँ नाली में। नाली के किनारे किनारे आएगा। अब यहाँ भी, इधर से भी कुछ पानी आ रहा है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या बना करके रखी है, पुलिया बना के रखी है, अंडरग्राउंड पुलिया बनाई हुई है। Yes, sir. ये पूरा का पूरा पानी अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके नाली के जरिए पुलिया से नीचे बहा देते हैं। तो क्या नहीं होता, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। नहीं होता। So that is what the surface drainage control work. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now these are what the 4 mitigation techniques of landslide. लैंडस्लाइड से बचने की ये 4 क्या है, मिटिगेशन टेक्निक्स हैं। मेरी कही गई बात इतनी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now just wait for a minute, let me rub this one, so we'll proceed to the next. प्रकाश और अंधकार के बीच होने वाला विनय कुमार, विनय कुमार, विनय कुमार, विनय। कुछ Yes, sir. समझ रहे हैं। हाँ, ये किसकी साउंड आ रही है पीछे, कौन बैठा है तुम्हारे? विनय, सर टीवी चल रहा है। आशीर्वाद का बाण लगाओ किसका है? और अपने यस सर, ये पीछे से आवाज काहे की आ रही थी? टीवी का। तो तुमको दिमाग में नहीं है कि पढ़ाई करते समय टीवी बंद रखना चाहिए? यस सर। क्लोज द टेलीविजन फर्स्ट। सर बंद हो गया। And now if you want to speak, listen. जब विनय listen first. यदि तुमको Yes, sir. तुमको यदि कुछ भी बात करनी है, ध्यान रखो
पढ़ाई करते समय तुम्हारा मोबाइल सारी एक्टिविटी कैच करता है। यस सर। तो यदि तुम तुम्हारे घर में अलग जगह पर नहीं बैठ सकते तो डोंट स्विच ऑन द माइक। ठीक है, माइक बंद कर लो अपना, माइक बंद करो। चलिए, इतना आया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आप ध्यान से सुनो। यस सर। बेटा Yes, अभी विनय के केस में हमने क्या इंसिडेंट देखा कि यदि आपके आसपास कोई भी आवाज हो रही है तो वो आवाज सीधे सीधे माइक से कैच होकर के क्लास में आती है। इज इट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, What you people need to do, आप लोगों को करना क्या है? ऐसी जगह पर ऐसे रूम में बैठो जहां आप लोगों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. और फिर वहां पर बैठ करके अपनी पढ़ाई करिए। दूसरा, यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, है ना, कि वंस वी कंप्लीट अवर टॉक वी शुड स्विच ऑफ अवर माइक। हम हमारा माइक क्या कर दें? बंद कर दें। समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अभी आप लोग स्टैंडर्ड 8 में हैं और हम लोगों को टीचमेंट पे पढ़ते पढ़ते 1 महीने के लगभग हो गया है। तो इस 1 महीने में हमें इस सिस्टम को समझना है और समझने में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब बोलना है तभी माइक चालू करें, अपनी बात कही और उसे बंद कर लें। गॉट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, So sir. now let us come to the next section, है ना? हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, we are having a diagram of soil profile. Hey, now this is what the diagram. Okay, so you could be asked with a question, draw a labeled diagram of soil profile. Draw a labeled diagram of soil profile. Soil profile का क्या ड्रॉ करना है? लेबल्ड डायग्राम। ये वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए। नाउ इज इट क्लियर अप टू दिस सेक्शन? यस सर। Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yes, sir. Yes, sir. जिसको डाउट है, जिसको डाउट है, Me Adya. I am Adya. आद्या प्लीज आस्क योर डाउट। Sir, is parent rock also called as bedrock? यस, पेरेंट रॉक इज नॉट ए बेड रॉक। ठीक है, बेड रॉक मतलब जैसे मिट्टी खत्म होगी उसके नीचे जो रॉक आएगा वो क्या कहलाएगा? बेड रॉक। ठीक है, Okay, sir. चलिए। Okay, sir. Thank you, sir. सो हाँ, यस, इतना है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. now, good Yes, beta. sir. Now before proceeding to the next, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था। अभी आप लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट 1 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैंने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर गूगल क्लासरूम का इनविटेशन लिंक भेजा है। इस साल की स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड 8 है उसमें अभी तक 38 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है।
ठीक, और राइट नाउ मेरे पास में 52 पार्टिसिपेंट्स तो यही लिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर मोर देन 60 स्टूडेंट्स इन बोथ द सेक्शन। तो अभी 38 ने ओनली ने ज्वाइन किया है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया, आई एम requesting all the students that after the completion of this class all of you should join the Google Classroom, ठीक है। क्योंकि आपको आपके ऑनलाइन असेसमेंट 1 के क्वेश्चन पेपर किसमें मिलेंगे, गूगल क्लासरूम में मिलेंगे, ठीक है। और आपको आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट माइक्रोसॉफ्ट लेंस से स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके कहाँ भेजना है, गूगल क्लासरूम पर भेजना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक ओनली 38 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन। अब आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने ज्वाइन किया या नहीं किया। सो दोज स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन द गूगल क्लासरूम। और ये मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले ही भेजा है, तो आपको व्हाट्सएप पर एक्सप्लोर करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा, देयर इज वन स्टूडेंट हु हैज जॉइंड विद बीएचटी स्टोरी। कौन है भैया ये? Who is I am? Who is I am? आदित्य सिंह। तो आदित्य सिंह ये बीएचटी स्टोरी चेंज करके, ठीक है। अरे यू लिसन, आदित्य सिंह नाम आना चाहिए। देन समवन हैज जॉइंड दीपांजलि मंथावार। हु इज दिस दीपांजलि? आसमी, ठीक है। चलिए, देन धीरज कुमार साहा के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है। एक है ईरा गेमिंग। हु इज ईरा गेमिंग? अक्षर तिवारी। अक्षर तिवारी। Yes, sir. Sir, I changed. हाँ, Sir, अक्षर I तिवारी। changed. I changed. अक्षर तिवारी नाम शो होना चाहिए, ध्यान रखना। Yes, sir. Sir, see now I changed. Then who is रोहित क्रिएशन? रोहित उगे, ठीक है। ये क्रिएशंस को उगे कर लो, रोहित उगे, ध्यान रखना। देन हु इज संदीप शेरकी? संस्कृति, ठीक है, ओके। तो जिन्होंने भी ये अपने फैशनेबल नेम्स लगा रखे हैं, ये सारे फैशनेबल नेम्स हटा करके, ओके। हु इज विदेश राम? समवन विदेश राम हैज ज्वाइन। कौन है ये? किसी को मालूम है हु हैज ज्वाइंड विद दिस आईडी विदेश राम? Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का रॉय, सिर्फ तुम बताओ कौन है विदेश राम? Sir, नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, Yes, sir. ठीक है, ओके। सो इज शी प्रेजेंट राइट नाउ? ठीक, ओके। सो यू प्लीज इन्फॉर्म हर, है ना। अनुष्का रॉय, Yes, sir. बोलो बेटा। उसको इन्फॉर्म कर देना कि वो इसको चेंज करे, ठीक है। Okay, sir. हाँ, चलिए। अब ये who wants to ask the question? Excuse me, sir, किसने बोला था? Sir, myself, that day I called you for the history chapter number 3 question answers. अरे यार, who is myself? Sir, शिवराज। बेटा शिवराज क्या है, हम लोग ऑनलाइन मोड में है ना। Yes, sir.
तो हु इज स्पीकिंग ये यहाँ दिखाई नहीं देता। Okay, sir. Okay. हाँ, now you ask the question regarding history chapter 2nd and history chapter 3rd, है ना? Yes, sir. हाँ, so yes, by Sir, mistake the questions were repeated. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. You can learn the answer from any one chapter, Okay, sir. and if the question comes in exam, you write that answer. Okay, sir. But Okay. sir, ruling the countryside long answers questions are not there. So if you give the long answer question from ruling the countryside chapter. हाँ ठीक है ना, जितना भी है उसी को याद करो। ओके Okay, sir. है ना? हाँ, Thank इफ लॉन्ग आंसर्स आर नॉट देयर इट्स ओके, जो भी होगा वो नोटबुक में जो है वो आएगा, Okay, sir. Okay. है ना? Okay. चलिए, सो Thank you, sir. ओनली नाउ 43 हैव जॉइन। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया क्लास के बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, सो ये सॉइल प्रोफाइल वाला एक हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ देन नेक्स्ट इज ए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहां पर हमारे पास में 2 फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, मेजर फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। अदर मतलब they also have role in the formation of soil but not that much। ठीक है, इनका भी सॉइल फॉर्मेशन में रोल होगा परंतु उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? ठीक, सो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर the nature of the parent rock and climatic factors। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक क्या है? नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड Climatic factors. ये दो जो है, these two are the factors of soil formation। ये क्या होंगे? सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स होंगे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. the other factors are, तो बाकी के फैक्टर्स कौन से होंगे? So the other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation। So total हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए? 5 फैक्टर्स। 2 मेजर फैक्टर्स हैं, द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और बाकी के 2 क्या हैं? Topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. Now all these factors differ from place to place। ये सारे फैक्टर डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह, अलग अलग जगहों पर ये फैक्टर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। कहीं पर पेरेंट रॉक अलग है ना? जैसे स्टैंडर्ड 7th में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स थी, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, तो सॉइल किस प्रकार की रॉक से बनी है उसी के हिसाब से सॉइल का क्या आएगा? कलर आएगा, और उस सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, कहीं पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देन रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिन इलाकों में पहाड़ हैं, माउंटेनियस रीजन है, लार्ज वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं,
बहुत घना जंगल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डेड होंगे, पेड़ों की पत्तियां गिरेंगी, तो ये सारा का सारा डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होके क्या बन जाएगा? मैन्योर, बोलते हैं ना खाद बन गई। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल यदि उस एरिया में अवेलेबल है, तो बारिश का पानी जब आएगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर सॉइल कैसी होगी? ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. Yes, sir. now, वो जो 5 फीचर्स हैं उसी को यहाँ पर डायग्राम के रूप में शो किया। ठीक है, सो रोल ऑफ पेरेंट रॉक, देन क्लाइमेट, है ना, देन टोपोग्राफी। यहां पर लिखा है टोपोग्राफी, और यहाँ बेसिकली वो क्या है? रिलीफ। यानी यहाँ जो लिखा है ना टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ, जमीन कैसी है, जमीन कैसी है। ठीक है, so that is the relief feature. Then role of organic material, यहां लिखा है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, उसी को यहां पर किस नेम से सजेस्ट किया? फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या दिया है? टाइम टेकर। ठीक, तो ये जो है इसको क्या कर दिया इन्होंने यहां पर शो किया। सो व्हाट आर द रोल ऑफ पेरेंट रॉक? पेरेंट रॉक का क्या रोल है? इट डिटरमाइंस कलर। पेरेंट रॉक से उस सॉइल की क्या आती है? कलर आता है। ठीक है, टेक्सचर, खुरदुरी है, बहुत बारीक है, कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें किस प्रकार के मिनरल हैं, कंटेंट है, परमिएबिलिटी मतलब वो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर पानी को सोख करके रखेगी। ठीक है, तो जैसे ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, तो जहां पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल के एरिया है वहां पानी एब्सॉर्ब होकर के जल्दी से जमीन के नीचे नहीं जाता, वो मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है। जब पानी को पकड़ के रखती है तो ऐसे खेत में जैसे ही बारिश होगी फिर कीचड़ कीचड़ मच जाएगा, चलना मुश्किल है। ठीक है, सो ये कहलाती है परमिएबिलिटी। इसी तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है कि उस एरिया में टेम्परेचर कितना है, वहां पर कितनी रेनफॉल होती है, तो उस एरिया का टेम्परेचर और रेनफॉल किसको? वेदरिंग ऑफ रॉक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। और ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब उस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन कितनी स्पीड से हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वहां के टेम्परेचर और रेनफॉल पे। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है। ठीक है, ऊपर के दोनों मेजर फैक्टर्स हैं, नीचे के तीनों माइनर फैक्टर्स हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई? पोर्टफोलियो एक्टिविटी। क्या हो गई? Portfolio activity. ठीक है, ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। मैंने लगातार दे रहा हूं एक्टिविटी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, ये sir. आपका पोर्टफोलियो एक्टिविटी। व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस एक्टिविटी? आई थिंक 5th और 6th। 7th है। तो अभी तक टोटल 7 एक्टिविटीज हो गई। अब ये वाला आपको Yes, sir. बहुत अच्छे से बनाना है। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, बनाना Yes, क्या sir. है? बनाना क्या है? Sir, this one.
This diagram. अच्छा, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो। बनाना क्या है? Sir, fruit. बनाना इज ए फ्रूट। Factor and minor factor information. ठीक है, Major and minor factor. गुड। पर फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनो। बनाना क्या है? Fruit. बनाना इज ए फ्रूट। Fruit. ठीक, बट आपको क्या बनाना है? This activity. ठीक है, चलिए। सो इज द टाइम ओवर और नॉट? Over, sir. ओवर। Over, sir, 9:32. We are finding up Over, the sir. section. That's all for today.